اور جب ہم کہتے ہیں سلام تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا پریز دی لارڈ. آئے بنا وقت ضائع کیے خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے. آج کا شیڈول بڑا لمبا ہے اس لیے ہم ساری چیزیں جلدی کور کرنے کی کوشش کریں گے. گیٹ ریڈی فار دا ورڈ آف گاڈ. خدا کے مبارک معتبر زندہ اور ابدی کلام کے لیے آپ تیار ہیں؟ ہاللیلویا. زوردار تالیوں کے ساتھ خدا کے نام کو سلام دیں. کتنی کتابیں برکتیں دی ہوئی ہیں اتنی تالیاں. کتنی خدا سے پیار کرتا ہے اتنی تالیاں. کتنی خوشیوں کی ہماری کروائی ہے اتنی تالیاں. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. اب اپنے لیے تالیاں بجائیں. پریز دی لارڈ. خدا کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. آج کا جو ٹاپک ہے ہم فرق دیکھیں گے چالاک اور ہوشیار میں. ڈفرنس بٹوین. کئی دفعہ اسکول میں ہمیں جو ہے وہ یہ ایک میتھمیٹک کے اندر چھوٹے بچوں کا کوشچن ایک آتا ہے بیفور. اس نمبر سے پہلے کیا آتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے. آفٹر اس کے بعد کیا آتا ہے بٹوین درمیان. یہ ہم کمپیریزن کریں گے چلاک اور ہوشیار کے درمیان موازنہ. ٹھیک ہے آج یہ ٹاپک ہے ہمارا. آئے نکالے میرے ساتھ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت. جانداروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. آمین. تھینک یو مبشر صاحب. خدا کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. خدا کے اس پاک کلام کو پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو. 2 لفظ ہے یاد کر لو. چلاک کہ ہوشیار. یہ 2 الگ الفاظ ہیں. ان کا مطلب الگ ہے. ان کا کام الگ ہے. اور پاک کلام میں سے آج ہم اسی کے متعلق سیکھنے والے ہیں. اور ابھی جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر لفظ آیا ہے چلاک. کیا لفظ آیا ہے؟ سانپ کے متعلق کہا جا رہا ہے وہ کل دہشتی جانوروں سے زیادہ کیا تھا چلاک تھا. بہت سارے جانور ہیں چرند پرند حیوانات بہت سے کیڑے مکوڑے بہت سے جانور ہیں. یہ باغ عدن کے اندر کی بات ہو رہی ہے. جب باغ عدن کے اندر تھے آدم و حوا تو یہاں پہ بہت سے ہر طرح کا جانور پایا جاتا تھا. اور ان سب میں سے چلاک کون سا جانور تھا؟ کون سا جانور تھا؟ کون سا جانور تھا؟ کچھ میرا گلا خراب ہے کچھ ساؤنڈ بھی خراب ہے لیکن کوئی بات نہیں. خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہم غور کریں گے اور سیکھیں گے. عزیزوں یہاں پہ ایک بات پہ غور کرنی ہے. چلاک. سانپ چلاک تھا. کیا تھا؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا جو چلاک شخص ہوتا ہے اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں آج ہمیں یہ واقعہ بتائے گا. اور ہمیں ایسا ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ بھی ہمیں پاک کلام ہی بتائے گا. یہاں پہ ایک بات پہ غور کرنا ہے کہ سانپ چلاک تھا. کیا تھا؟ اور اس نے چلاکی کیا کی؟ اس نے چلاکی یہ کی کہ اس نے ہوا کے ساتھ جھوٹ بولا. کیا بولا؟ کیا کہا؟ تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند. آئے اس آیت کو پڑھیں. 3 باب کی نیکسٹ جو ہے 5 آیت. بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. دھوکہ دے رہا ہے. کہتے ہیں تم خدا کی مانند بن جاؤ گی. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو وہ تو پہلے ہی خدا کی مانند تھے. آئیں اس کو واضح کرنے کے لیے پہلا باب نکال لیں. پیدائش پہلا باب اور اس کی 26 آیت.
पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत। फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए। खुदा ने आदम और हवा को किसकी मानद बनाया? अपनी मानद। खुदा ने आदम और हवा को अपनी मानद, यानी कि आदम और हवा खुदा की मानद बनाएंगे। खुदा की मानद वो ऑलरेडी थे और ये उनके साथ झूठ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम खुदा की मानद हो जाओगे, नेकोबदी की पहचान करने वाले हो जाओगे। ये नेकोबदी की पहचान के फ्रेम में लाके मेन उसका टारगेट था कि तुम खुदा की मानद हो जाओगे, खुदा जैसे हो जाओगे। लेकिन हकीकत ये थी कि खुदा ने ऑलरेडी उनको अपने जैसा बनाया था। अब देखें अब इसका काम उनको उस चीज के पीछे भगा रहा है जो ऑलरेडी उनके पास है। फ्रेम दे रहा है, अल्फाज को ऐड करके झूठ बोल रहा है और वो अम्मा हवा उस फ्रेम में आ गई। तो यहाँ पे हमने चालाकी के बारे में सीखना है। वो चालाक था और चालाकी करते हुए उसने क्या किया? फरेब दिया। क्या दिया? और झूठ बोला। क्या क्या किया? और तीसरी बात उसको ललचाया, लालच दिया। क्या कहता है? देखो ये कितना खुशनुमा है, दिखने में कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा फल है। और ये सारा मंसूबा बना के ट्रैप किया, फंदा लगाया, अपनी चापलूसी की बातों में फंसाया और अम्मा हवा वहां पे फंस गई। और उस बात को मान लिया और मानने के नतीजा में क्या हुआ? सजा भुगतनी पड़ी। क्या हुआ? अदन से बाहर, आराम की जगह से निकलकर बेचैनी और बेसुकूनी में वो आ गए। पहले कुछ नहीं करना पड़ता था, अब क्या हुक्म है? तू खून पसीने की कमाई खाएगा जब तक खाक में दोबारा लौट मौत भी वारद हो गई। सांप की चालाकी, सांप आपको पता है, दरअसल ये सांप अबलीस था। वो लूसीफर फरिश्ता जो आसमान से गिराया गया था, वो सांप के बीच में होकर आप कह सकते हैं, या सांप की शक्ल में भी आया ये भी कह सकते हैं। लेकिन असल इसके पीछे जो है मुकाशफा की किताब के अंदर इसकी तफसीर बयान की गई है। तफसीर वहां पे इसको पुराना अजहा कहा गया है। ये जो सांप है जिसने आदम और हवा को गुमराह किया, मुकाशफा की किताब में इसको पुराना अजहा कहा गया है। और ये जब आगे बढ़ते हैं उसी में तो वहां पे एक्सप्लेन किया गया है कि पुराना अजहा आसमान से गिराया हुआ फरिश्ता यानी कि अबलीस है। तो ये जो सांप है इसके अंदर अबलीस है, अबलीस इसको इस्तेमाल कर रहा है, इसके बीच में होकर काम कर रहा है और इसकी चालाकी को इस्तेमाल करते हुए अम्मा हवा को गुमराह कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, चालाकी करते हुए उसने धोखा दिया, फरेब दिया, झूठ बोला और ऐसा करके जब उन्होंने इसकी बात मान ली तो उनका नुकसान हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या नुकसान हुआ? अगर वो अदन के अंदर रहते वो कभी ना मरते। खुदा अब भी है, कभी नहीं मरेगा। खुदा हमेशा से था, हमेशा रहेगा। और खुदा ने आदम और हवा को हमेशा रहने के लिए बनाया, कभी ना मरने के लिए बनाया। लेकिन सांप की चालाकी की वजह से अब उनको नुकसान ही हुआ कि अब उन पर मौत वारद हुई और वो आज तक चलती आ रही है। पहले सब कुछ बना बनाया मिलता था, बकरे के पास खाना था, अब कमाना पड़ेगा। पहले सांप नहीं काटता था, शेर बकर पास चलता था और कुछ नहीं कहता था, अब वो सारे हो गए इंसान के दुश्मन। पहले धूप तकलीफ नहीं देता था अदन के अंदर, अब सूरज में गर्मी लगती है और सर्दी में सर्दी लगती है। अब आप बात सोचें कितना नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो याद रखिए, जो चालाकी है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है। जो चालाकी है उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना होता है। चालाकी का मतलब और मकसद क्या होता है? किसी को फरेब देना। चालाकी का मकसद होता है किसी को नुकसान पहुंचाना। तो जो चालाक इंसान होता है उसके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती हैं जो यहाँ पे सांप के जरिए जाहिर की गई और सांप के जरिए जाहिर हुई, क्योंकि ये क्वालिटीज चालाकी वाली क्वालिटीज और इसके जरिए सारे जो आगे मामले होते हैं ये क्वालिटीज अबलीस की हैं। किसकी क्वालिटीज हैं? लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है इंसानों में भी ये बात आज पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां तो जरूर हैं,
لیکن اس کے مطابق زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے. ہم اپنے کاموں سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم شاید خدا کے بیٹے نہیں، شاید معاملہ کچھ اور ہی ہے. تو عزیزوں، چلاک جو شخص ہوتا ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، وہ فریب دے گا. پہلی بات یاد رکھیں، سانپ ابلیس کی طرف سے تھا، کیونکہ اس وقت وہ جو کردار ہے وہ ابلیس کو ظاہر کرتا ہے، اور مقاشر کتاب بتاتی ہے کہ وہ ابلیس ہی تھا جو سانپ کی شکل میں آیا. ٹھیک ہے، تو آج بھی جب ایسی کوالٹیز انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ پہچان سکتے ہیں. اگر کوئی فریب دے رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا چلاک ہوں، میں چلاکی کروں گا، میں کسی کے لیے پھندا لگاؤں گا، کسی کا برا سوچوں گا اور کروں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ہاں، کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بات کھلتی ہے. وہ محاورہ ہے کہ 100 دن 14 ایک دن 7. چور چوری کرتا ہے لیکن ایک دن پکڑا جاتا ہے، اور جب پکڑا جاتا ہے تو بات کھلتی ہے. تو یاد رکھیں، آج انسانوں کے اندر بھی یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے چلاک ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ سوچیں گے، ہم یہ کریں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یاد رکھیں، جو چلاکی ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے. چلاکی کسی کو فریب دینے کے لیے کی جاتی ہے، چلاکی جھوٹ بولنے کے لیے کی جاتی ہے، اور یہ ساری کوالٹیز ابلیس کی کوالٹیز ہیں. اور اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. مجھے ایک بات بتائیں، کیا یسوع مسیح نے کسی کو نقصان پہنچایا؟ کیا یسوع مسیح نے کسی کے ساتھ فریب کیا؟ کیا یسوع مسیح نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا؟ کیا یسوع مسیح نے کسی کو کسی بھی طرح کا دھوکہ فریب کیا؟ نہیں. ہم چلاک بنتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں میں بہت ہوشیار ہوں، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، میں یہاں پہ یہ کر جاؤں گا، آنکھوں کے سامنے سے نکل جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. عزیزو یاد رکھیں، چلاکی پکڑی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے، ہماری چلاکی کی وجہ سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ چلاکی ہی کسی کے لیے برے منصوبے باندھنے کے لیے کی جاتی ہے. تو ہم مسیح کے لوگ ہیں، ہم برگزیدوں کی جماعت ہیں، ہمیں کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں، ہمیں کسی کے لیے فریب کرنے والے نہیں، ہمیں کسی سے جھوٹ بولنے والے نہیں، ہمیں کسی کے لیے پھندا لگانے والے نہیں بننا. مسیح نے اپنی جان دی تاکہ ہمیں بچائے، کہ ہمیں تباہ ہونے کے چھوڑ دے، ہمیں بچائے، میرا ساتھ دے. یسوع مسیح نے اپنی جان کس لیے دی؟ بچانے کے لیے، کہ ہمیں موت کے حوالے کرنے کے لیے؟ بچانے کے لیے. اگر اس نے بچانے کے لیے اپنی جان دی تو ہم اس کی بیٹیاں بیٹے ہیں. تو ہمارے اندر ہمارے باپ یعنی کہ آسمانی باپ خدا کی کوالٹیز ہونی چاہیے. ہم خدا کی کوالٹیز اپنی زندگی سے ظاہر نہیں کرتے، لیکن ہم ابلیس کی کوالٹیز کو ظاہر کرنا پسند کرتے ہیں، جو کہ نامناسب ہے، کیونکہ ہم برگزیدوں کی جماعت ہیں. یہاں پہ آپ سب مقدسین کی جماعت ہیں، آپ شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں، آپ دنیا سے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، آپ خدا کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں. خدا آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہے، اور آسمان پر اونچے مقاموں پر اس نے آپ کی جگہ تیار کی ہے، آپ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو آپ کو اپنے آسمانی باپ کی کوالٹیز کو ظاہر کرنا چاہیے ہمیں، اور آپ کو یا کس کی کوالٹیز کو، کس کی کوالٹیز کو ظاہر کرنا چاہیے؟ یقیناً آسمانی باپ کی کوالٹیز کو. تو عزیزو یاد رکھیں، یہاں پہ ورڈ چلاک استعمال ہوا ہے. بائبل کو جب بھی پڑھتے ہیں تو لفظوں پہ غور ضرور کیا کریں. ایک دفعہ آئے اس حوالہ کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ ایک بات ایگزامپل کے طور پہ بتانا چاہوں گا. سانپ نے چلاکی کی، چلاکی کس لیے کی جاتی ہے؟ نقصان پہنچانے کے لیے. یہ فرق یاد رکھنا ہے. چلاکی کس لیے کی جاتی ہے؟ سانپ نے چلاکی کی، فریب دیا، دھوکہ دیا، جھوٹ دیا، آدم و حوا کا نقصان ہوا. آپ کو 44 کی بیوی یاد ہوگی جس نے یوسف پر بری نظر رکھی اور بری خواہش سے اس کو اپنے پاس بلایا، لیکن یوسف نے کیا کیا؟ منع کیا. کیا کیا؟ ساتھ دے ذرا. آپ اس واقعات کو جانتے ہیں، رٹے رٹائے واقعات ہیں. کیا کیا؟ اچھا، اب اس کی جب مرضی پوری نہیں ہوئی، اس کی جب خواہش پوری نہیں ہوئی، اس نے چلاکی کی. کیا کی؟ اور چلاکی کیا کی؟ اس پہ الزام لگا دیا. اس نے کہا کہ تو نے میری بات کو نہیں مانا، تو نے مرضی کو پوری نہیں کیا، تو اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی. اس پر الزام لگا دیا کہ اس نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش
की और उसकी इस चालाकी की वजह से यूसुफ को कई साल जेल भुगतनी पड़ी। यूसुफ का नुकसान हुआ? क्या यूसुफ का कसूर था? क्या यूसुफ की गलती थी? क्या यूसुफ ने बुरी नीयत रखी? नहीं, किसी की चालाकी की वजह से, किसी की साजिश की वजह से, किसी के फरेब की वजह से उसको जेल भुगतनी पड़ी, कैद भुगतनी पड़ी, तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। तो ये चालाकी की दूसरी मिसाल। चालाकी दूसरों का नुकसान करती है, दूसरों को फरेब देती है, झूठ को रिप्रेजेंट करती है, और ये क्वालिटीज इब्लीस की हैं। एक और चालाकी की मिसाल में बाइबल में मिलती है, बड़ी खूबसूरत। दानियल नबी को जानते हैं सारे जी? दानियल नबी की एक किताब है पुराने नामे के अंदर, दानियल के नाम से एक किताब पाई जाती है, और ये बड़े खुदा के जबरदस्त नबी थे और वजीर भी थे, और बाकी जो वजीर थे दुनियावी वजीर वो इससे जेलस होते थे। उन्होंने एक चालाकी की और इसके खिलाफ साजिश की। उनको पता था दानियल दिन में 3 दफा इबादत करता है, अपने जिंदा खुदा की इबादत करता है। उन्होंने चालाकी की, उन्होंने कहा इसको फंसाना है, ये ईमानदार भी है, ये वफादार भी है, ये खुदा जो बादशाह के काम बड़ी ईमानदारी से करता है, और ये बादशाह की नज़र में मकबूल नज़र भी है, सबसे फेवरेट भी है, इसको हटाना है, इसकी कोई गलती नहीं मिल रही। उन्होंने कहा अब इसको फंसाना भी है, इसकी गलती भी नहीं है, तो ऐसा करो कि इबादत करता है दिन में 3 दफा, इसकी इस बात को पकड़ो और इससे फायदा उठाओ। उन्होंने कहा बादशाह तू इस पूरी बड़ी ममलकत का बादशाह है, और सिर्फ तू सजदे के लायक है। इस पूरे मुल्क को चाहिए कि तुझे सजदा करे और किसी खुदा की इबादत ना करे। और उन्होंने बादशाह के कान भरे और फरमान जारी करवा दिया कि अगर बादशाह के अलावा कोई किसी को सजदा करता है तो उसको शेरों की मांग में डाला जाएगा। और उनको पता था कि दानियल जिंदा खुदा की इबादत करता है दिन में 3 दफा। कितनी दफा? जवाब दे, कितनी दफा? उनको पता था कि दानियल अपनी आदत छोड़ेगा नहीं, और उनको पता था कि वो नाफरमानी करने की वजह से मुजरम ठहराया जाएगा और मारा जाएगा, और हम क्या हो जाएंगे? राजी, खुश। और ऐसा ही हुआ। दानियल ने वो सारी बात सुनी, लेकिन दानियल ने अपने खुदा की बात करना नहीं छोड़ी। डर खौफ था, जिंदगी और मौत का सवाल था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और अपनी आदत के मुताबिक उस सख्त कानून के बावजूद 3 दफा इबादत की, और उनको मौका मिल गया। उन्होंने जो है उसको बादशाह के हुजूर पेश किया। कहा बादशाह देख, इसने तेरे कानून को तोड़ा है, इसने तेरे अलावा जो है किसी और मबूद को सजदा किया है, तो इसने तेरे कानून को छोड़ा है। अब अपने वादा के और कौल के मुवाफिक इसको शेरों की मांग में फेंक। अजीजों, और आपको पता है दानियल शेरों की मांग में फेंका गया। ये थी उनकी चालाकी, और उनकी चालाकी ने दानियल को मौत के मुंह में पहुंचा दिया, लेकिन जिंदा खुदा ने दानियल को बचाया, दानियल को बचाया। हालेलुया। आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने दी। शाम की चालाकी ने अम्मा हवा और आदम को नुकसान पहुंचाया। क्या पहुंचाया? पोतीफर की बीवी की चालाकी ने यूसुफ को नुकसान पहुंचाया, और वजीरों की चालाकी ने दानियल को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की और मौत के मुंह में फेंक दिया। वो तो खुदा ने सिरों के मुंह बंद कर दिया और उसको बचाया। तो अजीजों, हम सिर्फ चालाकी के बारे में सीख रहे हैं। चालाकी इब्लीस का काम है। चालाक शख्स फरेब करता है, चालाक शख्स झूठ बोलता है, चालाक शख्स दूसरों के लिए बुरे मंसूबे बनाता है। अब हम 2 तरह के जो है बात करेंगे। दुनियावी मामलात में भी चालाकी की जाए तो नुकसान पहुंचाने के लिए होगी, फैमिली में भी चालाकी की जाए तो भी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए होगी, कलीसिया में भी चालाकियां की जाती हैं कलीसिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर हमारे घर में हमारे खानदान है छोटे छोटे, तो ये जब हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो मिलकर एक बड़ा खानदान बनता है जो कि मसीह का खानदान है। हालेलुया। ये हम सब एक फैमिली है। मुबशर साहब, हम राइट, हम एक फैमिली है, मसीह का खानदान, और ये भी एक खानदान है। और कई दफा मसीह के खानदान में भी चालाकियां लगाई जाती हैं कि हम इसको पीछे कर दें, उसको आगे कर दें, ये कर दें, वो कर दें। अजीजों, ना तो हमें दुनियावी मामलात में चालाकी लगाकर नुकसान पहुंचाना है किसी को, ना कारोबार में, ना रूहानियत में। हम मसीह के लोग हैं, मसीह के बेटे बेटियां हैं, तो हमें याद रखें, इस फर्क को याद रख लेना है। चालाक शख्स नुकसान पहुंचाता है। चालाक शख्स, ये जो वर्ड है ये बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब यीशु मसीह ने एक प्यारी सी बात की थी, उसकी तरफ चलते हैं। आए मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील, उसका 10 बाब और उसकी 16 आयत।
यहाँ पे सांप की बात की गई पैदाइश में कि सांप चालाक था। सांप क्या था? और चालाकी की वजह से उसने नुकसान पहुंचाया। यहाँ पे अलग वर्ड यूज किया गया। मत्ती 10:16, देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया पेड़ों को भेड़ियों के बीच में, पर सांपों की मानद होशियार। क्या वर्ड है जी? किस किस के पास बाइबल है? किस किस हाँ जी, जिस किस के पास बाइबल है अपना ऊपर करें। काफी के पास बाइबल है, मुझे मेरा साथ दीजिएगा। और जो मोबाइल पे बाइबल पढ़ रहे हैं योड़ा है, मैं भी यूज करता हूँ। बस आपने वर्ड पे गौर करना है। गुड गुड। आप जितने भी जिस तरह से आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपके पास वर्ड पे गौर करना है, मेरा साथ देना है। क्या लिखा है? सांपों की मानद एक आवाज में आप पढ़ रहे हैं, जरा पढ़ के क्या लिखा है? आप गौर करें, वहां पे जिक्र मिला सांप चालाक था। क्या था? यीशु मसीह तमसील दे रहे हैं और सिखा रहे हैं। कौन सिखाने वाला है यहाँ पे? यीशु मसीह। और क्या कह रहे हैं? सांपों की मानद होशियार। चालाक क्यों नहीं कहा गया? याद रखें, अगर लफ्ज वो नहीं इस्तेमाल किया गया, लफ्ज की एक मतलब होता है और उस लफ्ज को खास मीनिंग में यूज किया जाता है। लफ्ज बदलने से जुमला बदल जाता है, उसकी कहानी बदल जाती है। यहाँ पे यीशु मसीह ने नहीं कहा कि सांपों की तरह चालाक, क्योंकि हमें पता चलता है कि चालाकी करके उसने नुकसान पहुंचाया। सांप की दो फितरतें हैं, और ज्यादा भी हो सकती हैं, ज्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताने लगा हूँ। एक तो चालाकी करके नुकसान पहुंचाता है, डंग मारता है, और दूसरा जब उसको लगता है ना कि आगे दुश्मन मेरा मुझसे भी खतरनाक है, वो होशियारी करता है। और होशियारी करके पता नहीं करता है, फट से अपनी बाल में छुप जाता है। ये हकीकत बात है। जब चालाकी ये करता है नुकसान पहुंचाने के लिए, और जब उसको नजर आए कि मेरी अपनी जान खतरे में है, तो फिर वो होशियारी करता है। क्या करता है? और होशियारी करके वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, अपने आप को बचाने के लिए छुप जाता है। क्या करता है? तो यीशु मसीह ने यहाँ कहा सांपों की तरह होशियार, यानी कि ये जो होशियार वर्ड है ये जाहिर करता है कि आपको अपने आप को बचाने के लिए अक्लमंद बनना है, एक्टिव बनना है, दनाव बनना है। किसी को सांपों की तरह होशियार बनना है कि उसकी जान पे बनती है तो वो बच जाता है, वो छुप जाता है, वो छुपने में तेजी करता है। तो उसी तरह से यीशु मसीह ने हमें बचने के लिए कहा है कि बचने के लिए होशियार बनो, तेज बनो। सांप सुस्त होता है, तेज होता है, तो ऐसे ऐसे चलता है या ऐसे ऐसे चलता है, वो बहुत स्पीड से चलता है। सांप बहुत जब उसे हमला करना होता है या वो भागता है, बहुत स्पीड से चलता है। तो अजीजों, हमें होशियार बनना है। यीशु मसीह ने हमें तालीम दी है कि सांपों की तरह होशियार। चालाकी का मतलब नुकसान पहुंचाने वाले, होशियार का मतलब खुद को बचाने वाले। हमें किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं बनना, हमें खुद को बचाने वाले बनना है, हमें दनाव बनना है, हमें एक्टिव बनना है, हमें अक्लमंद बनना है। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी के खिलाफ मंसूबे मारने के लिए, किसी को डिग्रेड करने के लिए, किसी की लात टांग खींच के पीछे फेंकने के लिए, हाँ, और पीछे पड़े हमको उधर ही रहने देने के लिए नहीं। हमें होशियार बनना है फैमिली को समेटने के लिए, होशियार बनना है कलीसिया को समेटने के लिए, होशियार बनना है खुदा के काम को करने के लिए, होशियार बनना है मुसीबत से बचने के लिए। इस आयत का अगला हिस्सा पढ़ें, कबूतरों की मानद बेअज़ार बनो। हम क्या पढ़ जाते हैं? सांप की तरह होशियार और कबूतरों की तरह भोले भाले। हम ये पढ़ते हैं ना अजीजों, याद रखें, कोशिश करें कि जो वर्ड लिखा है वो ही पढ़े। मेरे साथ पढ़े। लिखा है कबूतरों की मानद बेअज़ार बनो। क्या यही लिखा है? अगर गलत लिखा है मुझे टोक सकते हैं। क्या यही लिखा है? बेअज़ार। इसका मतलब है मासूम, मतलब भोले भाले। ये मतलब है बेअज़ार, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जर नुकसान, बेअज़ार नुकसान ना पहुंचाने वाला। कबूतर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ जी, किस किस के घर में कबूतर हैं? क्योंकि मेरे कुछ भाइयों को कबूतर रखने का शौक है, तो अगर वो यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है तो चले कोई बात नहीं, आपने देखे होंगे। अब कबूतर लोग घरों में रखते हैं, कबूतर नुकसान नहीं पहुंचाते, पहुंचाते हैं? हाँ जी, कबूतर है नहीं ना, कबूतर नुकसान नहीं पहुंचाते, वो मासूम जानवर है, वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने किसी को नुकसान पहुंचाया नहीं? जवाब दें, नुकसान पहुंचाया नहीं।
और यीशु मसीह ने कहा कि कबूतरों की तरह बेअज़ार बनो, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाने वाले ना बनो। सांप ने चालाकी की और उसने नुकसान पहुंचाया। पोतीफर की बीवी ने चालाकी की, यूसुफ को नुकसान पहुंचाया। वजीरों ने चालाकी की, दानियल को मौत के मुंह में फेंक दिया। और यीशु मसीह ने कहा कबूतरों की मानद बेअज़ार बनो, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं बल्कि सांप की तरह होशियार, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए तेजी करो। इस आयत को मजीद वाज़ेह करने के लिए एक और हवाला निकालें। इमसाल की किताब 22 बाब 3 आयत। हाँ जी, इमसाल 22 बाब जी। यस, क्या लिखा है? होशियार। यीशु मसीह ने क्या कहा? सांप की तरह होशियार। मैंने आपको बताया कि होशियारी का मतलब है कि खुद को बचाना है, उसके लिए तेज बनना है। और यहाँ पे भी वर्ड होशियार का इस्तेमाल हुआ। होशियार बला को देखकर छुप जाता है। यीशु मसीह ने भी यही तालीम दी। क्या कहा? कि सांपों की तरह होशियार बनो। अच्छा, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। अगर आपको याद हो, यीशु मसीह तालीम दे रहे थे। यीशु मसीह क्या दे रहे थे अजीजों? और यीशु मसीह की बातों पे फकीर फरीसी बड़े ना आग बबूला हो जाते थे। ये मुहावरा है। गुस्से में आ जाते थे, तैश में आ जाते थे। उन्होंने कहा हम इसको अभी पत्थर मार के संसार कर देंगे। एक दफा उन्होंने कहा कि हम इसको पहाड़ी पे थे, उन्होंने सोचा कि हम इसको पहाड़ी से धक्का दे दें और नीचे गिर के ये मर जाए। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह को जब नजर आया मामला खराब हो रहे हैं, यहाँ पे जो है ये मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, वहां पे लिखा है यीशु मसीह छुप कर निकल गए। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने अगर तालीम दी है तो करके भी दिखाया है। यीशु मसीह ने क्या तालीम दी है कि मुकाबला करो, झगड़ा करो, फसाद करो? नहीं, लिखा है कि खुद को बचाने के लिए होशियार बनो। और वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह छुप कर निकल गए, उस क्राउड में से निकल गए, बचकर, अपनी जान को बचाकर। और इसे यहाँ पे आयत भी यही है, होशियार बला को देकर छुप जाता है। यहाँ पे आज मैंने आपको बताया था कि हम 2 अल्फाज का फर्क सीखेंगे। तो अजीजों, मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे दे के, चालाकी की एग्जाम्पल्स दे दे के बताया कि चालाक क्या करता है? सिंपल, नुकसान पहुंचाता है। दूसरों को क्या करता है जी? नुकसान और बड़ी कोशिश करो। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को लहराएं खुदा के जलाल के जोरदार। आइए ताली बजाएं हाथ ऊपर करके। अभी हम सलाम कर रहे हैं, होशियार करना है। तुम सुस्त बन गए हो। चालाक नहीं बनना है नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन होशियार बनना है अपने आप को दुनियावी मामलात में बचाने के लिए, कलीसियाई तौर पर बचाने के लिए, और खुदा के साथ जोड़े रखने के लिए अपने आप को होशियार बनना है। इबादत में आने के लिए होशियार बनना है, तेजी करनी है। दुआ करने के लिए तेजी करनी है। गीत गाने के लिए होशियार बनना है। आज ही बहन गीत गाएंगे? जी भाई मैं गाऊंगी, सामने है भाई। दुआ करेंगे? जी होशियार। यीशु मसीह ने तालीम दी है होशियार बनो, एक्टिव हो गए। जी मैं दुआ करूंगा। असी सुस्त बन जाने नहीं, सुस्ती नहीं, काहली नहीं, फसाद नहीं, धोखा नहीं, फरेब नहीं, झूठ नहीं, नुकसान के बुरे मंसूबे नहीं, ना घर में, ना कार पे, ना मोहल्ले में, ना चर्च में, ना खानदान में, कहीं पे भी नहीं। हमारे अंदर अबलीस की क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। हम मसीह के बच्चे हैं और हमारे अंदर खुदा की क्वालिटीज होनी चाहिए। और खूबसूरत क्वालिटीज खुदा ने बताई हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं, बेअज़ार और होशियार बनो उनको बचाने के लिए। हालेलुया। बहुत से मामले होंगे, इन बातों को ख्याल रखें, याद रखें। और मेरा ईमान है कि हमने बरकत पाई। किस किसने आज बरकत पाई? सलाम से हालेलुया। खुदा आपको मुझे इस बात से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अभी हम दुआ करेंगे और उसके बाद पाक साकत का वक़्त है, उसमें अपने आप को जो है इस दुआ के फौरन बाद पाक साकत दी जाएगी। अपने आप को याद करें, शुक्रगुज़ारी की दुआ करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपने आप को बंद करेंगे और हमारे दरमियान खुदा की बंदा ठेकेदार शफाकत मौजूद हैं। वो खुदा की बंदा